Hello everyone, it's me Kiran Bhusal. I am basically from Nepal and currently residing in Lakshminagar, Lalita Park, New Delhi. And Lakshminagar, the name sounds and suggests CA student, and yes, I am a CA student. And in CA profession and while studying CA, two things really matters. First is your guts to join CA, and second thing is the teachers from which you are taking classes. And there is a myth like Cost FM is really a tough subject, but I didn't found it tough subject. In Cost FM, hard work doesn't matter much, smart work matters a lot. And I learned this from CA Namit Arora. He is a genuine personality in field of Cost FM. His way of teaching, practical approach, his friendliness with the students, his open-mindedness, his way of making students comfortable towards him really matters. And it really mattered in my case. Due to his approach of teaching, I got 91 marks in Cost FM and I got 40th rank all over India. And it worked in case of mine, and I hope it will work in case of yours as well. So I suggest you to take classes from CA Namit Arora of Cost FM, because it will not only make Cost FM easier for you, it will make IPCC easier for you. So and at last I would like to suggest you that in CA, smart work always counts much more than the hard work. So do hard work in a smart way. Thank you. Hi everyone, this is Kishore here. I am pursuing my CA from Delhi, and I have secured All India 10th rank in CPT, and I chose Namit sir for my coaching of Cost FM, because right away after the CPT exam, when I consulted with my seniors, they told me that you would not get so much of time to study yourself and get in the matter, and so I thought that would be not a good choice. So I searched for a teacher who can teach properly and make you understand right in the class, and that is what you need in a CA, in a rushing and running way. And when I chose Namit sir and started my classes, I felt very easy and comfortable with him, because he is very friendly nature. And what I get out of from him is he not only teaches Cost FM but also guides you along the path of CA, what you have to do right in this phase and what you will do after your exam, or how you prepare for the exam. And the most strong thing is he is very friendly, and it doesn't make you feel that you are a student or something. That he makes you feel that you are here to learn, and he really helps. And what I suggest now is just think about it and consider Namit sir, because if you want your IPCC effective and qualitative and make you want to study in a healthy way, then better choose Namit sir. And so believe me, you would not regret your decision, and the best out of you will come. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी नमित अरोरा। दोस्तों, एक चैप्टर है आईपीसीसी में और सीए फाइनल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आईपीसीसी में 8 नंबर का आता है, सीए फाइनल में 16 नंबर का आता है। इस चैप्टर के अंदर बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एक क्लास डिज़ाइन की है पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। इस क्लास के थोड़े से फीचर्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा पहले समझाऊँगा, उसके बाद में उस चीज़ को लिखवाऊँगा, उसके बाद में उसके ऊपर एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस क्वेश्चंस के लिए आपको एक बुकलेट दी जाएगी, वो सीडी बुकलेट के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सभी के पास होगी आपके पास। उस बुक से फिर क्वेश्चन होंगे। आप क्या करेंगे, इन चारों स्टेप्स को 1 बाय 1 करेंगे। पहले समझना, लिखना, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल समझना, फिर न्यूमेरिकल करना। तोड़ तोड़ के करिएगा। सिर्फ 10-12 क्वेश्चन है बुकलेट में, और हमने कोशिश की है कि जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है
वो सब उसके अंदर कंपाइल कर दें और बच्चे को दिक्कत ना हो। बेसिकली आसान तरीके से समझाया बहुत, इसे एंजॉय करिएगा, आराम से देखेगा। मेरे पास 3 स्क्रीन है, एक ही कैमरा है जिसमें आप मेरे को देखेंगे, मैं बात करूँगा। दूसरी स्क्रीन है जब मैं लिखवाऊँगा। तीसरी स्क्रीन है मेरे पास जब मैं लिखवा भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। तो अभी मैं आपको लिखवाने वाली स्क्रीन दिखा रहा हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर आपको दिख जाए। देखिएगा 15 मिनट तक आपको पेशेंस रखनी होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसकी बात चल रही है। कवरेज क्या है इसकी, कवरेज बता देता हूँ। 8 मार्क्स इसके आईपीसीसी में आपके कवर होते हैं और 16 मार्क्स की कंपलसरी आएगी आपकी फाइनल में। आईपीसीसी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता इसलिए फाइनल में दिक्कत आती है। तो आईपीसीसी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फाइनल में ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आखिर ये चीज़ है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी लिखवा रहा हूँ, सिर्फ समझाऊंगा सारी चीज़ें। इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट कौन सा मैनेजमेंट? टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ये सब होते हैं टॉप लेवल पर। फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, आखिर ये सब चल क्या रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर? बताता हूँ आपको। जो भी लिखने का पार्ट है आप पॉज करके लिख लीजिएगा क्योंकि मैं इसमें टाइम ख़राब नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग के टाइम पे। वैसे टाइम दे देता हूँ। देखिए होगा क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे बिजनेस के जो खर्चे हैं हम उस पर कंट्रोल कर पाएँ। यार लेकिन ये कंट्रोल कैसे होगा, हम किस तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कंट्रोलिंग का तरीका। ये देखिए, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक मोबाइल मैंने बनाया या एक यूनिट बनाई किसी भी चीज़ की, वो 10,000 रुपये की बनी है। बताइए महंगी बनी है या सस्ती बनी है? सोच समझ के जवाब दीजिए। मैंने एक मोबाइल बनाया 10,000 रुपये का, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो 10,000 रुपये है। अब आप ये बताइए महंगी बनी है या सस्ती बनी है? अगर महंगी बनी है तो कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। क्यों महंगी बनी है? महंगी बनने के भी कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, वो देखेंगे। अगर सस्ती बनी है तो सस्ती क्यों बनी है और आगे भी हम सस्ती ही बनाना चाहेंगे। देखिए होगा क्या, आपके सामने जो एक्चुअल खर्चा आया 10,000 रुपये आया मोबाइल बनाने का, हम कैसे बता पाएँ कि आखिर ये यूनिट सस्ती है या फिर ये यूनिट महंगी है? बड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। इसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई होगी। आपको पहले क्या होना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये बनना कितने का था। मान लो यही एक यूनिट लास्ट ईयर हमने 9,000 रुपये की बनाई है और कोई इन्फ्लेशन नहीं है इस साल, तो बताइए काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मैं कह सकता हूं कि मेरे खर्चों में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस? 1,000 का डिफरेंस। ये मेरे फ़ायदे में है या मेरे लिए नुकसान वाली बात है? तो मैं आपको बता दूं, जो चीज़ 9,000 रुपये की लास्ट ईयर बनाई थी आपने इस साल 10,000 की बनाई है, तो 1,000 रुपये का आपका नुकसान हुआ है और ये आपके फेवर में नहीं है। तो इसे बोलते हैं एडवर्स, कि भैया ये हमारे फेवर में नहीं है, 1,000 का इस साल नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास अगर मैं फिर से बात कहूँ, अगर कोई आपसे कहता है कभी भी कि बताओ मैंने एक यूनिट बनाई 15,000 की, तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया? तो आप उससे पहले कहेंगे कि मेरे भाई पहले आप ये बता दो कि आखिर ये यूनिट बननी कितने रुपए की चाहिए थी। अगर मान लो ये 14,000 की बननी चाहिए थी तो बुरा काम किया, और अगर ये 16,000 की बननी चाहिए थी तो अच्छा काम किया। 16,000 की बननी थी, 15 में बना दी, वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हो आप। ये कितने में बननी चाहिए थी, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये एक रिव्यू है।
वापस आ रहा हूँ। देखिए बिजनेस में होगा क्या, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप, कोई भी बिजनेस, स्टेप 1, कोई भी बिजनेस क्या करता है, सबसे पहले करता है एस्टिमेशन कि आखिर हम फ्यूचर में क्या करेंगे। इस एस्टिमेशन को आप बजट भी बोल सकते हो कि कोई भी बिजनेस बजट बनाता है। ओके, ये एस्टिमेशन किया मैंने, बजट बनाया, उसने बजट बना लिया। क्या आप बता सकते हैं ये बजट कब बनता है? यस, बता सकते हैं। ये बनता है एट द बिगिनिंग ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। कोई भी पीरियड हो सकता है, 1 साल, 2 महीने, 4 महीने, कुछ भी पीरियड हो सकता है। तो ये स्टार्टिंग में बनाया जाता है। हमने बजट बना लिया कि भैया हम इस साल इतना इतना काम करेंगे। मैंने बजट बना लिया जी, इस साल ना मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा, इतने रुपए लगेंगे, इतना खर्चा होगा, सारा बजट बना के बैठ गया, इतनी सेल होगी, पूरा प्रॉपर बजट बना लिया, दिमाग सेट कर लिया अपना, हाँ ये काम हम करेंगे। अब उन टारगेट्स को अचीव करना है जो हमने बजट बनाया था। ओके, अचीव करना चालू करते हैं जी। स्टेप 2, इसके बाद में होगी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हो गई जी। इम्प्लीमेंटेशन को आप कह सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एक्चुअल सेल, कि कितनी सेल हुई जो भी बजट बनाया था उसके कंपैरेटिवली। ओके, ये काम कब होता है? ये काम होता है ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक पीरियड। जिस स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने बजट बनाया था उसी पीरियड में ये काम होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम रोज पढ़ने का बजट बनाते हैं कि हम 4 पेज पढ़ेंगे कल, और एक्चुअल में पढ़ते कितने हैं आप सभी को पता है। कितने पढ़ते हैं आप लोग? लास्ट में रिव्यू होता है, स्टेप 3। स्टेप 3 है हमारे पास रिव्यू। अब हम रिव्यू करेंगे या इवैल्यूएशन करेंगे कि भैया काम ठीक हुआ या गलत हुआ। ओके, ये कब किया जाता है? ये रिव्यू किया जाता है या तो दी एंड होने पर, काम होने पर, आइदर एट दी एंड ऑफ द पीरियड और ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो 3 स्टेप है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप है बजट बनाइए, दूसरा स्टेप है उस बजट को इंप्लीमेंट करिए, एक्चुअल में वो काम करिए जो आपने सोचा है, और फिर रिव्यू करिए कि आपने अच्छा काम किया या नहीं। जैसे कि ये लिखवा कर अभी मैं कटवा दूंगा। आपने सोचा 10,000 यूनिट बनाएंगे, 10 रुपए की 1 लाख रुपए की बनेगी। ओके, एक्चुअल में आपने 10,000 यूनिट बनाई, 11 रुपए की 1 बनी, बताइए कितना खर्चा हो गया? 1,10,000। अब उसके बाद में आप रिव्यू करोगे कि भाई ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बताइए काम अच्छा हुआ या बुरा? बिल्कुल सिंपल है, 1 लाख रुपए वाला काम 1,10,000 में हुआ है तो यानी काम खराब हुआ है, 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, इस रिव्यू को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो रिव्यू है हमारा, यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आता हूं मैं आपके पास, देखिएगा। आपने आज बजट बनाया कि आज मैं घर पे जाऊंगा, 20 पेज पढ़ के छोड़ूंगा, 20 पेज कंप्लीट करूंगा। बजट बना लिया, मन में पूरा कॉन्फिडेंस है, आज तो ये काम करना है जी, कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती हमें। पहुंचे, घर पहुंचे, अब घर पे पढ़ना स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। 1 घंटे में 1 पेज पढ़ा आपने। 1 घंटे में 1 पेज पढ़ा, बताइए क्या 20 पेज पढ़ पाएंगे आज या नहीं? नहीं पढ़ पाओगे, 20 घंटे थोड़ी पढ़ लोगे। ठीक है, तो एक बच्चा होता है जो जैसे ही पहला पेज पढ़ा ना तभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर देता है, कहता है ओ तेरी, मैंने तो 1 ही पेज पढ़ा 1 घंटे में, मैं गलत काम कर रहा हूँ, 20 पेज नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, एक बच्चा होता है पहले 3-4 घंटे पढ़ाई कर ली उसने, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, जितनी पढ़ाई करनी है। 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसने देखा अरे आज मैं 10 पेज पढ़ पाया, तो वो कहता है यार मैंने सोचे तो 20 थे लेकिन पढ़े मैंने 10 हैं,
तो 10 पेज मैंने कम पढ़े हैं। जब आप अपने आप को रिव्यू करते हो, वही है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। रिव्यू करने पर आप निकालते हो डिफरेंस कि आखिर आपने काम अच्छा करा या बुरा करा। सोचिए 20 पेज पढ़ने थे, 10 पेज पढ़े हैं, काम अच्छा या बुरा? सीधी बात है, काम आपने बुरा किया है। 20 पेज की जगह 10 पेज कम पढ़े हैं। अच्छा 20 की जगह 30 पेज पढ़ने, तो ऐसा तो आज तक हुआ नहीं सर, ऐसा तो कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, होगा। एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। तो अब हमने देखा 20 पेज पढ़ने थे, 10 पढ़े हैं, रिव्यू करा, एनालिसिस करा, ये तो हमने गलत कर दिया। अब यही रुकेंगे नहीं, अब रीजन ढूंढेंगे, आखिर ऐसा हुआ क्यों। कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है तबीयत खराब हो गई, हो सकता है दिमाग कहीं और है, दिमाग यहाँ ना होकर पड़ोस में या कहीं भी हो सकता है, दिमाग चला जाता है कहीं पर, समझ सकता हूँ मैं। तो फिर रीजन निकालेंगे कि आखिर रीजन क्या था। रीजन निकालने के बाद में फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। यार अब ना, आज तो मैंने उसके बारे में सोचा है 4 घंटे, कल नहीं सोचूंगा, कल मैं अपना दिमाग बुक पे ही रखूंगा। आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से? पहले हम एक बजट बनाएंगे, फिर हम एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल और बजट के बीच का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस का रीजन निकालेंगे। डिफरेंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, फिर उसके ऊपर कंट्रोलिंग करेंगे। यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ओवरऑल व्यू है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सोचेंगे, वो सिखाता हूँ। बहुत आराम से करिएगा, मस्त टॉपिक है ये और आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो आखिर हम ये समझें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और कॉस्टिंग अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट या नॉर्मल कॉस्ट, आखिर ये होती क्या है, देखिएगा। which should be incurred for actual production। ठीक है, अभी पल्ले नहीं पड़ेगी आखिर ये चीज़ क्या है, थोड़ी देर में पल्ले पड़ेगी, पल्ले जरूर पड़ेगी, होले होले आएगा सब समझ में। एक्चुअल कॉस्ट ये क्या होती है? which हैज बीन इनकर्ड, हैज इनकर्ड होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, अब लिख दिया मैंने। which हैज बीन इनकर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर रुकता हूं मैं। इन दोनों का मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों का मतलब अभी नहीं समझेंगे, ये लिखकर छोड़ देंगे। इन दोनों का मतलब नहीं समझना, एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसके बाद आने वाला हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर अभी, फिर इसको समझेंगे। देखिएगा, एक चीज है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ओके, लेकिन सर हमें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट आपने कहा है कि अभी समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, इज नोन एज वेरिएंस। इस वेरिएंस का ही सारा गेम है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसी वेरिएंस पे खड़ी हुई है। मैं वेरिएंस आपको बता रहा हूं कॉस्ट के रेस्पेक्ट में, वेरिएंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट सिचुएशन। बहुत ध्यान से आप लोग अब मेरे को जवाब देंगे, जबकि आप कुछ जानते नहीं हैं तब भी आप जवाब दे सकते हैं। सोच के देखिए, मेरी एक्चुअल कॉस्ट, मेरा जो एक्चुअल खर्चा है, जो खर्चा हुआ है, वो नॉर्मल खर्चे से या स्टैंडर्ड खर्चे से ज़्यादा है, यानी जितना खर्चा होना चाहिए था उससे ज़्यादा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कितना खर्चा होना चाहिए था, वर्ड बोल रहा हूँ, कितना खर्चा होना चाहिए था। एक्चुअल का मतलब कितना खर्चा हुआ है, दोनों में फ़र्क है। स्टैंडर्ड जेन्युइन बात कहता है कि ऐसा होना चाहिए, और एक्चुअल बताता है एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, उलझना नहीं है, अभी उलझना नहीं है।
ठीक है, एक्चुअल वाला खर्चा स्टैंडर्ड वाले खर्चे से ज़्यादा हुआ है, तो बताइए सिचुएशन कैसी हुई? अरे ये तो बुरी सिचुएशन हुई, खर्चा ज़्यादा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एडवर्स वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस, तो डिफरेंस बुरा है। मान लीजिए एक्चुअल में खर्चा हुआ 5 लाख रुपए और होना चाहिए था 4 लाख रुपए, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं 1 लाख रुपए का आपका एडवर्स वेरिएंस है, इसे 1 लाख ए बोलते हैं, वेरिएंस 1 लाख ए, यानी 1 लाख रुपए आपका नुकसान हो गया। नुकसान कैसे? 4 लाख की जगह 5 लाख का खर्चा हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी सिचुएशन, एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, आपका खर्चा होना था 4 लाख, लेकिन एक्चुअल में हुआ है 3,50,000। अब बताइए 4 लाख की जगह 3,50,000 खर्च हुए, अरे बहुत अच्छी बात है, तो गुड, एप्रिशिएबल है, इसे बोलते हैं फेवरेबल, आपके फेवर में है, फेवरेबल वेरिएंस। ओके, कितने रुपए का फेवरेबल वेरिएंस है? 50,000 रुपए का, आपका फायदा हो गया, वेरी गुड। थर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी उतना ही खर्चा हुआ है जितना खर्चा होना चाहिए था। 4 लाख रुपए खर्च हुए हैं, 4 लाख ही खर्च होने थे, अरे वेरी गुड। ये कैसा है? न्यूट्रल, इनडिफरेंस, जीरो वेरिएंस, कोई वेरिएंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों कॉस्ट के अंदर। ओके, ये सिचुएशन न्यूट्रल होती है। मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, जरा इस सिचुएशन को देखिए ध्यान से जो लिखवाइए। अब बताइए एक्चुअल खर्चा स्टैंडर्ड खर्चे से ज्यादा हुआ है, क्या यहां बिजनेस पर कंट्रोल की जरूरत है या नहीं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि यहां पर कंट्रोल की जरूरत है या नहीं है। ओवियस है, 1 लाख रुपए फालतू खर्च हो रहे हैं, पता लगाओ क्यों खर्च हुए, रीजन बिहाइंड द इनकरेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ 1 लाख, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना ही पड़ेगा। बिजनेस चला रहे हो, यहां तो मैंने लैक्स लिखे हैं, ये करोड़ भी तो हो सकते हैं, आपका तो सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी। तो आपको रीजन ढूंढना होगा कि भैया ये 1 लाख रुपए क्यों फालतू खर्च हुए। सिचुएशन 2, 4 लाख की जगह 3.5 लाख रुपए खर्च हुए, एप्रिशिएबल सिचुएशन है, एप्रिशिएट करिए इसे और ढूंढिए, इसका भी रीजन ढूंढिए कि आखिर 50,000 रुपए क्यों कम खर्च हुए। कोशिश करिए इन फ्यूचर हमारा पैसा ऐसे ही कम खर्च हो। और तीसरी सिचुएशन 1 बराबर है, तो कोई कुछ स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, यानी 3, खर्चा ज्यादा हुआ, कंट्रोल करिए, रीजन ढूंढिए, खर्चा कम हुआ, रीजन ढूंढिए, एप्रिशिएट करिए, इसी चीज को आगे फर्दर अप्लाई करिए बिजनेस में, जिससे हर साल फायदा हो। ओके, और तीसरी इक्वल है कॉस्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब सच्ची मुच्ची कितना रुपया खर्च हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कितना रुपया खर्च होना चाहिए था, तो कितने रुपए लगने थे, कितने लगे, यही सारी चीजें आपके पास आएंगी। ठीक है, मान लीजिए मैं मोबाइल बनाने की कंपनी है मेरी, मैं सोच रहा हूं मोबाइल बनाना है जी। ओके, ये मोबाइल मुझे बनाना है, ये मोबाइल मैंने सोचा 20,000 रुपये में बन जाएगा, ठीक है, तो ये मोबाइल 20,000 में बन जाएगा, तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 20,000। क्या एक्चुअल में जब कंपनी बनाएगी तो 20 का ही बनेगा? 20 से ज़्यादा का भी बन सकता है, कम का भी, वो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। देखेंगे एक एक करके। 15 मिनट पूरे होने वाले हैं बस थोड़ी देर में, मैंने कहा था 15 मिनट तक की बोरिंग है, उसके बाद फिर बातें बदल जाएंगी। जो आपके पास वेरिएंस हैं, जो आपके पास वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट,
ये दो तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर 2 से 4 नंबर में, थ्योरी में आता रहता है ये वाला। टाइप्स ऑफ वेरिएंस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कंट्रोलेबल, आप इसके ऊपर कंट्रोलिंग कर सकते हो। ऐसा कैसा? जैसे लाइक हाई रेट ऑफ लॉस। वैसे हमारा लॉस होता है 10%, इस बार 15% हो गया। बताइए, जनरली 10% लॉस होता है, बट इस बार 15% लॉस हुआ है। मुझे बताइए क्या इन फ्यूचर ये चीज कंट्रोल की जा सकती है या नहीं? वैसे 10% होता है, इस बार 15, कोई बात नहीं, ध्यान दो, तरीके से काम करो। लॉस ज्यादा होगा तो हमारा नुकसान होता है, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टेक करेक्टिव एक्शंस, take corrective actions to avoid adverse variances। ठीक है, ओके, यहां तक। दूसरा है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल क्या होते हैं? लाइक ऐसा जो आपके वश में नहीं है, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन आ गई, स्ट्राइक हो गई, एटसेट्रा। ये हमारे बस के बाहर है, इस पर हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। कैन नॉट अवॉइड एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, अब मैं आप लोगों से जो कहने वाला हूं सुनिएगा। स्कूटर 50 किलोमीटर चलता है, 100 रुपये लीटर तेल है। बताइए मेरा स्कूटर कितना एवरेज दे रहा है? 100 रुपये का तेल है, 50 किलोमीटर चलता है। क्या मैं कह सकता हूं 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपये है? 50 किलोमीटर मेरा स्कूटर चलता है 100 रुपये में, तो 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपये, ठीक है। अब मेरे स्कूटर की मैंने सर्विस नहीं करवाई बड़े दिनों से, बहुत दिन हो गए, बस घसीटे जा रहा हूँ, उसे लपेटे जा रहा हूँ, सर्विस नहीं करवा रहा। आप लोग बताइए, सर्विस नहीं करवाऊंगा, माइलेज कम होगा, एवरेज गिर जाएगा। एवरेज गिर गया इसका। अब देखिए एवरेज गिरने से क्या हुआ? एवरेज गिरने से 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 40 किलोमीटर चला। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। यानी 100 रुपये में 40 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर का खर्चा बताइए, 2.5 रुपये हो गया। 1 किलोमीटर का खर्चा 2.5 रुपये। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं इस डिफरेंस को, ये जो मेरा नुकसान हुआ है 50 पैसे हर किलोमीटर का नुकसान हो रहा है आपका, क्या मैं इस डिफरेंस को, इस वेरिएंस को ठीक कर सकता हूं या नहीं? एडवर्स वेरिएंस है, 50 पैसे पर किलोमीटर एडवर्स, मेरा नुकसान हो रहा है। 2 रुपये खर्च होने चाहिए थे स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल में खर्च हुए 2.5 रुपये। एक्चुअल कॉस्ट, वेरिएंस 50 पैसे का डिफरेंस है, मेरे फेवर में नहीं है, मेरे अगेंस्ट है। इस 50 पैसे के नुकसान को क्या मैं ठीक कर सकता हूँ स्कूटर की मेंटेनेंस करवा कर? रिपेयर मेंटेनेंस करवाऊँ, माइलेज ठीक करवाऊँ? यस, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं तो यह है कंट्रोलेबल वेरिएंस। दूसरी सिचुएशन, इसी में दूसरी सिचुएशन लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा किस तरीके से। दूसरी सिचुएशन अब हमारे पास है ये 50 रुपये में, सॉरी 100 रुपये में 50 किलोमीटर चल रहा है। इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन आ गई, तेल का रेट हो गया 120 रुपये। स्कूटर बिल्कुल सही चल रहा है, 50 किलोमीटर ही चला है, 2 रुपये पर किलोमीटर पे चलना था। अब बताइए 120 डिवाइडेड बाई 50, 2 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है। मुझे बताइए क्या मैं अब इस डिफरेंस को, 40 पैसे का डिफरेंस है, एडवर्स वेरिएंस, मुझे बताइए 2 रुपये की जगह 2 रुपये 40 पैसे खर्च हो रहे हैं, 2 रुपये लगने चाहिए पर किलोमीटर,
लेकिन 2 रुपये 40 पैसे लग रहे हैं, 40 पैसे का जो डिफरेंस है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। ओके, आ जाते हैं वापस। एडवर्स वेरिएंस, वी कैन नॉट अवॉइड एडवर्स वेरिएंस, या नुकसान नहीं बचा सकते, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, अब बहुत आराम से देखिएगा, शांति से समझिएगा, सब समझ में आएगा। सिचुएशन लिख रहा हूं, केस 1। रेड पेन कम दिखता है, ब्लू यूज कर लेता हूं। केस 1, बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन आर सेम। दो तरीके की सिचुएशन मिलेंगी आपको पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये पहली सिचुएशन है, बहुत कम मिलती है ये। बच्चा इसकी वजह से बड़ा दुखी है। बड़ा बच्चा पूछता है कि सर बजटेड कॉस्ट में और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या फ़र्क है। आज समझ में आएगा आपको कि बजट में और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल। बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन इक्वल्स टू 100 यूनिट। मैंने अपने मन में सोचा, ये भाव है मेरे मन में कि भैया 100 यूनिट बनाऊंगा। अरे बड़े अच्छे विचार हैं भैया आपके मन में। तो बजटेड कॉस्ट, मैंने सोचा खर्चा कितना आएगा जी। ये सारी की सारी कॉस्ट मैं मान लेता हूं वेरिएबल है, 100% वेरिएबल। ओके, बजटेड कॉस्ट आएगी आपकी 10,000 रुपये। ओके, 100 यूनिट बनाऊंगा, 10,000 रुपये आएगी। पर यूनिट नहीं है ये, पूरी 100 यूनिट की है, ठीक है। 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट, ओके, एंड एक्चुअल कॉस्ट 11,000 रुपये। ओके, ये मेरे सामने सिचुएशन है। कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, मुझे कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है। सॉल्यूशन, डिफरेंस किस किस के बीच में निकालते थे? वेरिएंस का मतलब था डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं आपको बताता हूं, जाकर पढ़िए स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन। पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट के आगे, विच शुड बी इनकर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो खर्च होनी चाहिए, पहले एक्चुअल प्रोडक्शन बताओ मेरे भाई कितना है। तो जी एक्चुअल प्रोडक्शन आपके पास है, एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट। ओके, 100 यूनिट है एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको दो पार्ट में मैंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया। मैं इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। एक तरफ लिख रहा हूं एक्चुअल कॉस्ट और दूसरी तरफ लिख रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। 100 यूनिट के लिए एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी? 11,000। अच्छा, 100 यूनिट के लिए 11,000 रुपये खर्च हुए, ये एक्चुअल कॉस्ट है। 100 यूनिट के लिए कितने रुपए लगने चाहिए थे? बजट देखिए, बजट देखिए, बजट में क्या लिखा हुआ है? बजट में लिखा हुआ है 100 यूनिट बनाने के लिए 10,000 रुपये लगने चाहिए थे। अच्छा, यानी 10,000 हुई स्टैंडर्ड कॉस्ट। वेरिएंस बताइए, वेरिएंस आ गया जी 1,000 एडवर्स। 1,000 रुपये का एडवर्स वेरिएंस है, मेरा नुकसान है। ए से दिखाते हैं एडवर्स को। लेकिन सर आपने तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की जगह बजटेड कॉस्ट लिखी है। क्या बजटेड कॉस्ट ही स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, या स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट एक ही चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्लियर करेगा कि डिफरेंस क्या है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं। ये थी केस 1, केस 2 पे ले जा रहा हूं इसी सेम एग्जाम्पल को। यहां पर अगले पेज पे ले जाता हूं, केस 2। सेम एग्जाम्पल लिख रहा हूं फिर से, और जरा देखिए केस क्या लिख रहा हूं।
अब केस लिख रहा हूं मैं, आप लोग क्या बहुत ध्यान से समझिएगा आखिर चल क्या रहा है। ये बहुत सिंपल है, अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर। बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन आर डिफरेंट। ओके, ये है क्या सर, कर क्या रहे हो, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पड़ेगा बेटे, बस थोड़ी ही देर और जा रही है, सब कुछ क्लियर होना चालू हो जाएगा। बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन है 100 यूनिट, बजटेड कॉस्ट 100% वेरिएबल मानकर चल रहा हूं इसको, 10,000। एक्चुअल प्रोडक्शन equals to 1000 units, एक्चुअल कॉस्ट 1,10,000। कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस। सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अब सब कुछ कंपाइल होने चालू हो रहा है, धीरे धीरे कंपाइल होगा, देखिए समय लगेगा, आराम आराम से समझिएगा। अब देखिए बता रहा हूं आपको, इस सिचुएशन में करवाता हूं पहले आंसर, उसके बाद में आपको डिफरेंस पता चलेगा। पहले एक्चुअल प्रोडक्शन लिखिए, हमारा जो टारगेट है वो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं एक्चुअल कॉस्ट और यहां लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखिएगा, एक्चुअल कॉस्ट तो आपको मालूम है 1,10,000 रुपये, ठीक है। अब मैं यहीं पर रुक जाता हूं, इस एग्जाम्पल को यहीं छोड़ रहा हूं और वापस जा रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन पर, फिर पहले एग्जाम्पल पे वापस जाऊंगा। चलिए जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन पर आ गया, आराम से देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट रेफर्स टू दैट कॉस्ट विच शुड बी इनकर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। मैं अब आपके पास आ रहा हूं, देखिएगा, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन आपने किया है उसके लिए होना चाहिए। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, अब इसको अलग तरीके से बोलता हूं। पहला क्वेश्चन, आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, ओके, दिमाग में पहला क्वेश्चन लाएंगे कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है, 100 यूनिट बनाई, 10,000 बनाई, 50,000 बनाई, ठीक है। फिर सोचेंगे इस प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, दैट्स इट, स्टैंडर्ड कॉस्ट खत्म। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो ऐसे आएगा आपको, देखिएगा। पहला टारगेट एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ, दूसरा टारगेट इस प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आ रहा हूं, आ जाता हूं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने बजट बनाया कि 100 यूनिट बनाऊंगा और 100 यूनिट का खर्चा होगा 10,000, ओके। मैंने बजट बनाया 100 यूनिट बनाऊंगा, 100 यूनिट का खर्चा 10,000 रुपये होगा, यहीं तक रुकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई, देखिएगा, एक्चुअल में भी 100 यूनिट बनाई। अब मुझे बताइए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब हमारा टारगेट बजटेड प्रोडक्शन नहीं है, ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है एक्चुअल प्रोडक्शन। हमने 100 यूनिट बनाई हैं, 100 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा होना चाहिए मेरे भाई, दिया हुआ है 100 यूनिट बनाने के लिए 10,000 खर्च होने चाहिए, बनाई भी 100 यूनिट हैं तो 10,000 तो खर्च होंगे, बिल्कुल सिंपल। 100 यूनिट के लिए 10,000 रुपये खर्च होने चाहिए, यहां लिख रहा हूं 100 यूनिट्स के लिए 10,000 रुपये खर्च होने चाहिए, 10,000
का एक्सपेंस होना चाहिए, खर्च होने चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब 100 यूनिट्स के लिए एक्चुअल में कितना खर्च हुआ। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे पहला टारगेट एक्चुअल प्रोडक्शन है 100 यूनिट। 100 यूनिट के लिए कितना खर्च हुआ 11,000। 100 यूनिट के लिए कितने खर्च होने चाहिए 10,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट 10,000, एक्चुअल 11, 1,000 का वेरिएंस आ गया। अब मुझे बताइए क्या बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक ही चीज होती है? यस, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन सेम होगा, अगर एक्चुअल में भी 100 यूनिट बनाई हैं और बननी भी 100 ही यूनिट थी, तो बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम हो जाएगी। अभी इस चीज को लिखवाऊंगा, लेकिन अगले उस पर आते हैं एग्जाम्पल पर। अब पढ़ते हैं। हमने बजटेड प्रोडक्शन है 100 यूनिट, 10,000 रुपये खर्च होने थे। एक्चुअल में 1,000 यूनिट बना दी और एक्चुअल कॉस्ट है 1,10,000। मेरा टारगेट क्या है? क्या बजटेड प्रोडक्शन मेरा टारगेट है? नो, मेरा टारगेट बजटेड प्रोडक्शन नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन है। सोचकर बताइए, देखकर बताइए, एक्चुअल प्रोडक्शन 1,000 यूनिट और एक्चुअल खर्चा 1,10,000। एक्चुअल कॉस्ट तो मुझे पता चल गई। अब बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब 1,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्च होना चाहिए। कितना खर्च होना चाहिए। ओके, तो बताइए अगर 100 यूनिट के लिए 10,000 खर्च होते हैं, बहुत सिंपल, अगर 10,000 रुपये खर्च होते हैं 100 यूनिट्स के लिए, तो 1,000 यूनिट्स के लिए बताइए कितने खर्च होने चाहिए। तो 1,000 यूनिट के लिए 1,00,000 रुपये खर्च होने चाहिए। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब वो सिंपल है, 1,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्च हुआ। 1,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्च हुआ। अब आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट क्लियर हो गई होगी। वेरिएंस बताइए, डिफरेंस। यस, 10,000 का वेरिएंस है, कैसा है? एडवर्स। ये है वेरिएंस, 10,000 रुपये फालतू खर्च हुए। अब यहां तक आप लोग 1 मिनट के लिए पीछे जाकर सारा पॉज कर दीजिएगा, मेरे को, मुझे पॉज कर दीजिए। अब पीछे जाकर यहां तक का सब कुछ पढ़ लीजिए। आप रिप्ले करके आ गए होंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं उसके आगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कितना रुपया खर्च होना चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब कितना रुपया खर्च हुआ एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। मेन टारगेट एक्चुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, क्या बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम होते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी। कब कब देखेगा। नोट, if actual production equals to budgeted production, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन सेम है तो बजटेड कॉस्ट ही स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, if actual production is not equals to, is more or less than budgeted production, अगर budgeted production से कम या ज़्यादा है, then budgeted cost not equals to
स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बराबर नहीं है, बल्कि इन दिस सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग बजटेड डेटा, बजटेड डेटा के बेसिस पर। जैसे कि हमने यहां पर कैसे निकाली स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमने ऐसे निकाला कि भैया बजट था 10,000 रुपये खर्च होंगे 100 यूनिट पर, तो 1,000 यूनिट पर कितने खर्च होने चाहिए, तो जी 1,000 यूनिट पर 1,00,000 रुपये खर्च होने चाहिए। और हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है हमारे लिए एक्चुअल प्रोडक्शन। इसी के चारों तरफ गेम चलेगा, ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट है। मैं आपको लिखवा देता हूं वेरिएंसेज। हमारे पास जो वेरिएंसेज हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक कॉस्ट से रिलेटेड और एक सेल से रिलेटेड। जो कॉस्ट से रिलेटेड हैं उसको 3 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स रिप्रेजेंट करेंगे सारी इनडायरेक्ट चीजों को। ओवरहेड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है वेरिएबल ओवरहेड में और फिक्स्ड ओवरहेड में, ठीक है। ये हमारे पास पूरा क्लासिफिकेशन है। आप जो भी नोटिंग वाला काम है वो पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि मैं लिखने का टाइम दे पाऊँ आप लोगों को। समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर पूरा नोट करते रहना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सबसे पहला जो वेरिएंस है वो वेरिएंस में लेके चल रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये होगा मेरे पास पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये बेसिकली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के नाम से फेमस है। लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के नाम से इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एक ही बात है। इसको फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस में, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ओके। दूसरा इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस में, ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और इस यूसेज वेरिएंस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं आप मटेरियल्स यील्ड वेरिएंस में और मटेरियल मिक्स वेरिएंस में, ठीक है। ये सब क्या है इस पर आएंगे, आप ऐसे ही एज इट इज नोट कर सकते हैं। अभी मैं यहां पर आकर करीब अप्रोक्स आधे पौन घंटे बाद यहीं पर वापस आकर आपको फार्मूले लिखवाऊंगा इसी में। यहां पर अभी हम कुछ जगह छोड़ देंगे ऐसे नाम देकर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ, इसके आगे मैं अभी जगह छोड़ दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी 2-3 लाइनों के नीचे मैं लिखूंगा रिवाइज्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड क्वांटिटी RQ, ठीक है। इसके आगे मैंने ऐसी जगह छोड़ दी, ओके। इन पर मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। देखिएगा, मटेरियल वेरिएंस करने वाले हैं। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, उस एग्जाम्पल को इतना लंबा स्ट्रेच कर देंगे, लंबा स्ट्रेच यानी कोई 2-3 घंटे नहीं जाने वाला, 15-20 मिनट। उसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, फिर मटेरियल वेरिएंस के 3-4 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मटेरियल वेरिएंस आ गया तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गई। इसके अंदर मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर ये समझ में आ गया, आगे की एक एक चीज़
क्लियर होती चली जाएगी। इसमें लगेगा हमें आधा घंटा, तो अगली चीज़ में लगेंगे 15 मिनट, 10 मिनट, दैट्स इट, गेम ओवर हो जाएगा। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़, आपको दो चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक टर्म बोली जाती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेसिकली क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल वो चीज़ है जो मशीन का इनपुट बनता है, इनपुट ऑफ प्रोसेस। ये मशीनों के अंदर डाला जाता है, यही कंज्यूम्ड होता है, यही यूज्ड होता है फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ है मटेरियल्स कंज्यूम्ड, तो किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की। कहीं लिखा हुआ है मटेरियल इनपुट, तो किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की। कहीं लिखा हुआ है मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, तो किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। यही हमारी कॉस्ट है, यही हमारा खर्चा है, हम इसी को तो खरीदते हैं। जरा देखिए, मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल बनाने की कंपनी हूँ, मैं मोबाइल बनाया खरीदता हूँ, मोबाइल बनाने की कंपनी हूँ, या इसका प्लास्टिक, इसकी स्क्रीन, इसकी सारा इक्विपमेंट, इसकी बैटरी खरीदता हूँगा। बेसिकली मैं इसकी अलग अलग चीज़ों को तोड़ तोड़ के खरीदता हूँ, प्लास्टिक खरीदता हूँ, स्क्रीन खरीदता हूँ, चिप खरीदता हूँ, बैटरी खरीदता हूँ। उन सबको फिर मैं क्या करता हूँ? उन सबको मैं एक जगह पर असेंबल करके इस मोबाइल को बनाता हूँ। तो जितनी भी मैंने मोबाइल की प्लास्टिक, स्क्रीन, ये सब चीज़ें खरीदी, यही तो मेरी कॉस्ट है। मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की प्लास्टिक, ये सब मेरा खर्चा है, इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। और ये सब खर्चा करके मुझे मिलता क्या है? मुझे मिलता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है? हमारे वाले केस में मोबाइल। फिनिश्ड प्रोडक्ट को ऐसे हिंट करा जाता है, इसे बोला जाता है फिनिश्ड गुड्स, इसे बोला जाता है प्रोडक्ट, इसे बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, एक्स कंज्यूम्ड, बताइए क्या है इसका मतलब? इट मीन्स एक्स इज आर रॉ मटेरियल। ठीक है, लिखा हुआ है एक्स प्रोड्यूस्ड, एक्स बना है, इसका मतलब इट मीन्स एक्स इज अ फिनिश्ड आउटपुट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर लिखा हुआ है एक्स कंजम्पशन में आया, एक्स यूज्ड, एक्स कंज्यूम्ड, लिखा हुआ है एक्स कंज्यूम्ड, एक्स इज द इनपुट ऑफ प्रोसेस, एक्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, इन सब का मतलब एक्स रॉ मटेरियल है। लिखा हुआ है एक्स इज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस या एक्स प्रोड्यूस्ड, तो इसका मतलब एक्स फिनिश्ड गुड्स है। मुझे बताइए, मैं खरीदूंगा किस चीज को? मैं फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीदता हूं या मशीनों के अंदर बनाता हूं? बताइएगा, तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरर के ऊपर बनी हुई है, ट्रेडर के ऊपर नहीं बनी हुई। ये ट्रेडर के ऊपर नहीं, मैन्युफैक्चरर के ऊपर बनी हुई है। बेसिकली अगर एक्स बना है तो एक्स फिनिश्ड गुड्स है, दैट इज नॉट माई कॉस्ट, वो मेरी कॉस्ट नहीं है। मेरी कॉस्ट तो है एक्स को बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, जो मैंने लेबर लगाई। क्या मोबाइल मेरी कॉस्ट है? नहीं, मोबाइल तो फिनिश्ड आइटम है, पूरा कंप्लीट है। मेरी कॉस्ट क्या है? इसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा गया, इसके लिए, इसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, यूज्ड हुआ, पेट्रोल यूज हुआ होगा, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ें यूज हुई हैं, वो मेरा खर्चा है। धीरे धीरे समझ में आएगा, टाइम लगेगा। अगर ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यूज करता हूँ रॉ मटेरियल और बनाता हूँ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल फॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके से आता है स्टैंडर्ड डेटा। किस चीज का स्टैंडर्ड डेटा? इन रिलेशन
टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स, या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स लिखता हूं। मुझे पहले आप ये बताइए प्रोडक्शन होता किस चीज का है। बिल्कुल सीधी बात बताऊं तो प्रोडक्शन होता है फिनिश्ड गुड्स का। ओके, ये इन्होंने आपको डेटा दिया। क्या डेटा है जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ए, बी और सी, मैं 3 रॉ मटेरियल से मिलाकर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहा हूं। वेरी गुड। जैसे कि मैं मोबाइल बना रहा था, मोबाइल किस किस से, स्क्रीन से, और मोबाइल किस चीज़ से, बैटरी से, इन सब चीज़ों से मैं मोबाइल बना रहा था। ऐसे ही मैं ए बी सी 3 मटेरियल हैं, उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्स बना रहा हूं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप। ओके, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड, कितनी क्वांटिटी लगेगी जी। इन्होंने कहा ना ए है ना आपके पास, ए वो ना 40 किलोग्राम लग जाएगा। क्या आप बात कर रहे हो 40 किलोग्राम? यस, ओके। और 30 किलोग्राम ना बी लग जाएगा। ओके, 30 किलोग्राम लग जाएगा सी। टोटल कितना लग गया? 100 किलोग्राम लग गया। ओके, इसी को बोलते हैं इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। मैं 100 किलोग्राम का इनपुट करूंगा, 40 किलोग्राम ए, 30 किलोग्राम बी और 30 किलोग्राम सी। अब परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इन्होंने कहा ₹5 पर किलोग्राम। ओके, ₹3 पर किलोग्राम। ओके, एंड ₹4 पर किलोग्राम। ठीक है, ये इन्होंने रेट बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने ये आपको स्टैंडर्ड डेटा दिया कि जी एक्स बनाना है तो ABC लगाना होगा, 40 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, ये रेट रहेगा। अब स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट कितना आएगा इससे? स्टैंडर्ड आउटपुट यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा जी, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स जी। जो प्रोडक्ट एक्स बनकर तैयार होगा उसका आउटपुट आएगा 90 किलोग्राम्स। वेरी गुड, 90 किलोग्राम का आउटपुट आ गया। आप बता सकते हैं मैंने कितना रॉ मटेरियल यूटिलाइज किया? वेट के सेंस में, क्वांटिटी के सेंस में मैंने 100 किलोग्राम मटेरियल लगाया है। आउटपुट जरा देखिए कितना आया? 90 किलोग्राम। रीजन बता सकते हैं? बिल्कुल, कुछ ना कुछ लॉस भी तो हुआ होगा प्रोसेस में। तो मैं कह सकता हूं स्टैंडर्ड प्रोसेस लॉस कितना होगा? स्टैंडर्ड प्रोसेस लॉस, स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन इक्वल्स टू 10% ऑफ इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। ये मेरे को मैनेजमेंट ने पूरी कहानी सुनाई कि इस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। देखिएगा, मैनेजमेंट मेरे को इसी तरीके से कोई ना कोई कहानी बताया करेगा कि जी एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। एक्स, ये मिल्टन की बोतल हो सकती है, इसके लिए ढक्कन लगेगा, इसके लिए ये लगेगा, स्टील ये सब कुछ लगेगा। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट आपको इसी तरीके से कोई डेटा देगा, फिर आपको एक्चुअल की कहानी सुनाएगा। पहले उसने पूरी कहानी सुना दी आपको, ABC लगेगा, इतने किलोग्राम लगेगा, इस रेट से लगेगा, इतना आउटपुट आएगा। अब जरा देखिए एक्चुअल कहानी क्या बता रहा है। वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे वो कहानी सुना रहा है आपको एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा की बात करता हूं मैं। एक्चुअल डेटा देखिए, उसने कहा कि देखिए सबसे पहली चीज एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ वो देखिए। तो इन्होंने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 9000 किलोग्राम्स ऑफ एक्स।
तो 9000 किलोग्राम हमने एक्स एक्चुअल में बनाया है। ओके ठीक है, अब वो बताएगा कितना रॉ मटेरियल लगा, वो कहेगा रॉ मटेरियल यूज्ड, वो कहेगा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और वो कहेगा परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ये तीनों कहानी वो आपको बताएगा, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। अब जरा देखिएगा कैसे बता रहा है। कह रहा है जी देखिए जो मटेरियल लगा है ना वो ए लगा है, बी लगा है, सी लगा है। 5250 किलोग्राम्स लगा है ए, 2100 किलोग्राम लगा है बी, और 3150 किलोग्राम लगा है सी। टोटल लगा है 10,500 किलोग्राम। ओके, ये उसने कहानी बताई आपको, मटेरियल इतना लगा। रेट लगा है जी 6 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये पर केजी। इसके आगे कर देता हूँ पर केजी, पर केजी, पर केजी। ठीक है, ये कहानी मेरे सामने आ गई। क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड आउट ऑल मटेरियल्स वेरिएंस। ठीक है, फाइंड आउट ऑल मटेरियल वेरिएंसेज, ये क्वेश्चन ने आपसे कहा। ठीक है, अब इसके आगे से पूरी कहानी स्टार्ट होगी। सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिफरेंस के। अब जरा देखिए डिफरेंस के रीजन। नोट देखिएगा, आपके पास जो कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है उसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहले मैं वो रीजन लिखवा रहा हूँ, फिर आपको एनालिसिस करवाऊंगा। अगर आपको ये रीजन समझ में आ गए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी खत्म। देयर आर 3 रीजन्स ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा। रीजन नंबर 1, आप लोग बड़े आराम से देखिएगा क्या क्या कारण हो सकता है। पहला कारण लिखवा रहा हूं, ड्यू टू डिफरेंस इन परचेज प्राइस। हो सकता है आपने चीज सस्ते में खरीदी है या फिर महंगे में खरीदी है। परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, एक रीजन तो ये है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दूसरा रीजन लिखवा रहा हूं, फिर तीसरा लिखवाऊंगा, फिर समझाऊंगा। नोट कर सकते हैं आप साथ के साथ, ड्यू टू डिफरेंस इन मिक्स ऑफ मटेरियल यूज्ड। इससे बोला जाता है मटेरियल्स मिक्स वेरिएंस। और तीसरा और लास्ट, ड्यू टू डिफरेंस इन यील्ड। यील्ड का मतलब आउटपुट, या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन loss into the production process। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं मटेरियल्स यील्ड वेरिएंस। ये 3 वेरिएंस हमारे पास हो सकते हैं। इसके अलावा कोई चौथा वेरिएंस
नहीं हो सकता। अब इन तीनों का रीजन समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इन तीन का रीजन समझ गए या ये तीन क्या चीज़ें हैं ये समझ गए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आप लोग जवाब देंगे। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, आप लोग भी साथ में बनवाइएगा, फिर दोनों एक साथ पियेंगे। देखिएगा, चाय बनाने जा रहे हैं हम लोग। चाय में दो तीन चीज़ें मिलती हैं, एक दूध और एक पानी। ओके, अब देखिए, तीन कारण हो सकते हैं कि हमारी चाय महंगी बने या फिर सस्ती बने। फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है? चाय। सबसे पहली बात जरा सोच के बताइए, अगर मैं दूध ज्यादा लगाऊं पानी कम लगाऊं, खर्चा बढ़ जाएगा। बहुत आराम से सोचिएगा, मैं दूध ज्यादा लगाऊं पानी कम लगाऊं, दूध तो सस्ता नहीं होता, दूध महंगा होता है। मैं दूध ज्यादा लगाऊं और पानी कम लगाऊं, चाय महंगी बनेगी। मैं दूध कम लगाऊं पानी ज्यादा लगाऊं तो चाय सस्ती बन जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, दूध महंगा खरीदूं तो चाय महंगी हो जाएगी, दूध सस्ता खरीदूं तो चाय सस्ती हो जाएगी। तीसरा रीजन, दूध को बहुत देर तक उबालता रहूं, अगर उबालता रहूंगा तो चाय का पानी और दूध उड़ जाएंगे जलकर, तो नुकसान हो जाएगा, तो चाय कम बनकर आएगी। एक कप की जगह आधा कप बन सकती है। बड़े आराम से देखिएगा, मैं एक एक करके आपको तीनों बता रहा हूं। पहला, मैं भी दिख जाता हूं, चलो आपको साथ में। देखिए, पहला रीजन बताइए, दूध 35 रुपए लीटर था, मैंने 40 रुपए लीटर लिया। 35 रुपए लीटर वाला दूध 40 रुपए लीटर लिया, बताइए चाय महंगी बनेगी या सस्ती? महंगी बनेगी। इसी का उल्टा करता, अगर 40 वाला 35 में लेता, सस्ती बनती। रीजन बताइए क्यों महंगी बनेगी अब? क्योंकि परचेज प्राइस में डिफरेंस है। परचेज प्राइस 35 की जगह 40 है। और जरा देखिए, यही तो मेरा पहला रीजन है, ड्यू टू डिफरेंस इन परचेज प्राइस। अगर आप चीज महंगी या सस्ते में खरीदते हैं तो आपका कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। दूसरा, 50%, आधा कप दूध लेना है, आधा कप दूध आधा कप पानी। ओके, आधा कप दूध लेना है आधा कप पानी लेना है, मैं 3/4 कप ले लूं दूध, यानी 75%। 75% दूध ले लूं, 25% पानी ले लूं, अब बताइए क्या होगा? चाय महंगी बनेगी क्योंकि दूध ज्यादा लगा रहे हो। अच्छा, पानी 75% ले लूं, दूध 25% ले लूं, चाय सस्ती बनेगी, पानी ज्यादा लगा रहे हो। बात समझ रहे हैं? तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है? इनका जो मिक्सचर था 50-50, इनका मिक्सचर था 50-50, आपने उस मिक्सचर को चेंज कर दिया। यही हमारा दूसरा पॉइंट है, डिफरेंस इन मिक्स। जो आपका मिक्सचर है दो मटेरियल का, वो बदल दिया आपने, तो डिफरेंस आ जाएगा। तीसरा रीजन, चाय को 10 मिनट उबालना था, 10 मिनट उबालना था। ओके, हमने 20 मिनट उबाल दिया, अब बताइए क्या हुआ होगा? चाय तो बहुत ही कम बची होगी, तो जहां 1 कप चाय बनती वहां आधा कप बनी होगी। बताइए क्या मेरी चाय की कॉस्ट महंगी हो गई या नहीं? ऑब्वियस, नुकसान ज़्यादा हुआ है, चाय की कॉस्ट ज़्यादा हो गई। ये है हमारा यील्ड और आउटपुट। जहां 1 कप आउटपुट आना था वहीं पर आधा कप आउटपुट हुआ है, क्योंकि ज़्यादा देर तक उबाली, उड़ गया, या मैं कह सकता हूं लॉस ज़्यादा हो गया। ये हमारे पास 3 रीजन है। पहला रीजन, मटेरियल को खरीदने का रेट अलग हो सकता है, परचेज प्राइस अलग अलग हो सकता है। दूसरा रीजन, जो मिक्स है अलग अलग मटेरियल का, महंगे कुछ मटेरियल महंगे, कुछ सस्ते, कुछ और सस्ते, उनका मिक्सचर जो है, जो प्रपोर्शन है वो बदल सकता है। प्रपोर्शन में दिक्कत आती है बच्चे को, समझाऊंगा वो भी। तीसरा रीजन, जो नुकसान है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, वो भी देखेंगे। ये 3 चीज़ें हमें देखनी है इसमें। अब इसका मैं जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, वो एक वर्किंग नोट है, सॉल्यूशन। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग नोट है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, सॉल्यूशन। ये मैं वर्किंग नोट करवा रहा हूँ, इसकी एग्जाम की प्रेजेंटेशन भी अभी सिखाऊंगा, पहले वर्किंग नोट आ जाए। वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है। एग्जाम की प्रेजेंटेशन की बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, बहुत आराम आराम से एक एक बात बोलूंगा, आराम से सुनिएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ
एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल, ओके, ये बना देता हूँ मैं एनालिसिस टेबल। ठीक है, अब देखिएगा, आराम से बातों को सुनिएगा और बताइएगा। ये आप लोग के सामने पूरी सिचुएशन रख रहा हूं मैं। आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। एनालिसिस टेबल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, आराम आराम से बस जवाब देते रहेंगे मुझे कि हाँ भाई सर ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये बात ठीक है, ये बात गलत है। देखिएगा, लिखना कुछ नहीं है, एक एक करके मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत आराम से समझिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इतू सिंपल बस ना पूछो। यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ रॉ मटेरियल, ए बी सी, ये मैंने बना दिया कॉलम टोटल का। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, जा रहा हूं मैं पीछे की तरफ। ये मेरे सामने टारगेट, बताइए टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है एक्चुअल प्रोडक्शन, यही मेरा टारगेट है। टारगेट एक्चुअल प्रोडक्शन 9000 किलोग्राम ऑफ एक्स, लिख देता हूं टारगेट 9000 किलोग्राम एक्स आपने प्रोड्यूस किया, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब मैं सारी बात इसके लिए करूंगा। जरा देखिए, मैंने 3 रीजन आपको स्पेसिफाई किए हैं। पहला रीजन स्पेसिफाई किया है ड्यू टू डिफरेंस इन परचेज प्राइस, परचेज प्राइस की वजह से डिफरेंस आया है। चलता हूं, जरा देखिए, आपने ए बी सी 5250 किलोग्राम, 2100 किलोग्राम, 3150 किलोग्राम खरीदे हैं। किस परचेज प्राइस से, किस रेट से खरीदे हैं? 6 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये से खरीदे हैं। ओके, 6 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये से खरीदे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से, स्टैंडर्ड डेटा के हिसाब से किस रेट से खरीदने चाहिए थे? तो मेरे भाई ये खरीदने चाहिए थे 5 रुपये से, 3 रुपये से, 4 रुपये से। क्या आपने ए को 5 रुपये से खरीदा? नहीं, महंगा खरीदा है। अरे फिर तो कॉस्ट बढ़ गई होगी। क्या आपने बी को 3 रुपये से खरीदा? नहीं, हाँ खरीदा है, खरीदा है। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आपने सी को 4 रुपये से खरीदा है? नहीं खरीदा, तो कॉस्ट बढ़ गई होगी। ए और सी की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। इसको दिखाने का तरीका मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं कि आखिर परचेज प्राइस की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। जरा देखिए किस तरह से दिखाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है, यहां लिखा जाता है एक्चुअल क्वांटिटी और ये लिखा जाता है एक्चुअल प्राइस। यहां लिखा जाता है एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। आप लोग लिखेंगे कुछ नहीं, और ये AQSP ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इसमें भी नहीं उलझना है। एक्चुअल क्वांटिटी, हमने कितनी एक्चुअल क्वांटिटी ली है जरा आप मुझे बता सकते हैं? तो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है 5250 किलोग्राम, 2100 किलोग्राम एंड 3150 किलोग्राम। ओके, ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है। आपने 5250 किलोग्राम, 2100 किलोग्राम और 3150 किलोग्राम मटेरियल यूज किया है। अब मैं आपको बताता हूं मुझे किस बात से दिक्कत है। मुझे इस बात से दिक्कत है कि आपने ये कितने रुपए में खरीदा। जी ये मैंने 6 रुपए में खरीदा। खरीदा कितने में? खरीदना कितने में था? 5 रुपए। ये कितने में खरीदा? 3 रुपए। खरीदना कितने में था? 3 रुपए में। ये कितने में खरीदा? 5 रुपए में। खरीदना कितने में था? 4 रुपए में। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला कॉलम AQAP मेरे पास आ गया कि आपने मटेरियल कितने में खरीदा, एक्चुअल प्राइस, और दूसरा है कितने में खरीदना था। तो ठीक है, जरा देखते हैं कितने में खरीदा। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं कितनी क्वांटिटी ली। 5250 6 रुपये,
2100 3 रुपये, 3150 5 रुपये, 53,550 रुपये का खर्चा टोटल हुआ है। अच्छा, होना कितना चाहिए था? 5 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। 45,150 का खर्चा होना चाहिए था, यानी खर्चा होना चाहिए था 45,150, हुआ है 53,550। और बताइए किस चीज का डिफरेंस लिया है मैंने डिफरेंस लिया है सिर्फ प्राइस का, तो इसका नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मुझे बताइए कितने रुपए खर्च होने थे? 45,150, हुए कितने हैं? 53,550, 53,550। आपने 8400 रुपए का नुकसान कर दिया प्राइस की वजह से। एक एक करके डिफरेंस लेना है, देखेगा। अब जरा मुझे बताइएगा, यहां पर मुझे जो सामान 45,150 में खरीदना था, वही सामान मैंने 53,550 में खरीदा है, महंगा खरीदा है, 8400 रुपए का नुकसान पहुंचा है। किस वजह से? क्योंकि प्राइस ज्यादा थे, इस वजह से। आप ऐसे देख सकते हैं, 5250 किलोग्राम पर आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो 5250 का नुकसान ये हो गया। और 3150 पर आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो 3150 का नुकसान ये हो गया। टोटल 8400 का नुकसान हुआ, क्योंकि चीज आपने महंगे में खरीदी। ओके, दूसरी बात आती है, जो दूसरा रीजन हमने लिया था, मिक्स की वजह से। आपने मैनेजमेंट का बताया मिक्स फॉलो नहीं किया, इसके लिए हमें निकालनी पड़ती है रिवाइज क्वांटिटी, रिवाइज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए क्या करें, इनका कहना है आपने किस रेट से खरीदा, हमें मतलब नहीं। हमें इस बात का दुख हुआ, हमें इस बात का दिल में दर्द हुआ कि आखिर आपने उस रेशो में क्यों नहीं खरीदा जिस रेशो में मैनेजमेंट ने कहा था। भैया कौन से रेशो की बात कर रहे हो? ये बार बार रेशो रेशो बोले जा रहे हो। चलते हैं, जरा देखिए मैनेजमेंट ने आपसे क्या कहा था। मैनेजमेंट ने आपसे कहा था ए लेना 40 किलोग्राम, बी लेना 30 किलोग्राम, सी लेना 30 किलोग्राम। क्या मैं कह सकता हूं 4:3:3 का रेशो है? बताइए, क्या मैं कह सकता हूं 4:3:3 का रेशो है? यानी अगर 4 किलोग्राम ए तो 3 किलोग्राम बी और 3 किलोग्राम सी, या फिर क्या मैं कह सकता हूं 40%, 30%, 30% का रेशो है? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता? तो मैं कह सकता हूं 40-30-30% या 4:3:3 होना चाहिए मैनेजमेंट के हिसाब से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4:3:3 या फिर 40%, 30%, 30%, ये होना चाहिए। ठीक है, अब जरा चलते हैं, देखते हैं क्या आपने ऐसा ही किया है। 10,500 किलोग्राम आपने मटेरियल लिया, आपने 10,500 किलोग्राम मटेरियल लिया। 10,500 किलोग्राम का जरा निकालना 40% कितना आ रहा है, निकाल के देखना। 10,500 मल्टीप्लाई बाई 40%, 4200 किलोग्राम। क्या ये 4200 है? नहीं, इसका मतलब आपने 40% नहीं लिया। अच्छा, 30% चेक करिए, क्या ये 30% है? 3150? नहीं, यानी आप मैनेजमेंट की बात नहीं मान रहे हो। और क्या ये 30% है? यस। तो आपने सी तो ठीक लिया है, पर ए और बी 40 और 30% नहीं लिए। ये तो बड़ी गलत बात करी है आपने, ये तो आपने बेमानी वाली बात करी है, आपने मैनेजमेंट की बात नहीं मानी, इस वजह से आपका खर्चा बढ़ गया होगा। आपको 10,500 किलोग्राम 4:3:3 में लेना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट कह रहा है वैसे ही करना चाहिए। भैया आधा कप दूध लो, आधा कप पानी लो, वरना कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉस्ट में डिफरेंस आने का एक कारण रेशो फॉलो करना ना होता है। कंपोजिशन जो बताया गया है वही लीजिए, कोई बात नहीं। इसे इन्होंने नाम दिया रिवाइज क्वांटिटी, जो मैंने पीछे जगह ब्लैंक छोड़ी थी। लिखेगा
एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स used in production, actual quantity of raw material used in production, but in standard mix या standard proportion as suggested by the management. ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन बट इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन और मिक्स एज सजेस्टेड बाय द मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूं। मैनेजमेंट कह रहा है कि आपने कितने किलोग्राम लिया, देखिएगा रिवाइज क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी बताइएगा जी। एक्चुअल क्वांटिटी किस चीज की, ऑफ रॉ मटेरियल जी। हमारी एक्चुअल क्वांटिटी 10,500 किलोग्राम है, ठीक है। बताइए मैनेजमेंट ने आपको क्या रेशो बताया था जी। मैनेजमेंट ने हमें कहा था 4:3:3, 4:3:3। अगर आप 4:3:3 लेते तो देखिए क्या आता, तो आता 4200 किलोग्राम, 3150 किलोग्राम एंड 3150 किलोग्राम, ठीक है। यानी अगर आपने मैनेजमेंट का रेशो माना होता, हमें इस बात से दिक्कत नहीं कि आप कितने किलोग्राम लगा रहे हो, क्या रेट ले रहे हो, हमें दिक्कत किस चीज से है, आप क्या रेशो ले रहे हो। तो आपको 4:3:3 में लेना था। अब मैनेजमेंट कहेगा अगर हम सेम क्वांटिटी को 4:3:3 में लेते तो हमारा खर्चा कितना आता, 5 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। टोटल करके देखते हैं भैया। 4200 मल्टीप्लाई बाई 5, 3150 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3150 मल्टीप्लाई बाई 3 जी। हमारा खर्चा 39,900 रुपये आता सिर्फ। अगर आपने मैनेजमेंट का मिक्स माना होता तो आपका खर्चा सिर्फ 39,900 आता, लेकिन नहीं माना, इस वजह से 45550 आया। इसे बोला जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। जरा डिफरेंस देखिए कितना है, 45150, 5250 आपने फालतू खर्च कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक ये हुआ। देखिए दो बातें करी मैंने अभी तक। पहली बात मैंने करी है प्राइस की वजह से डिफरेंस, दूसरी बात मैंने करी है रेशो की वजह से डिफरेंस, तीसरी बात करूंगा फिर मैं रुक जाऊंगा। आप लोग पीछे तक का पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा, फिर इस एग्जाम्पल को पूरा कंपाइल करेंगे। अगर पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, समझिए पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म, ठीक है। लास्ट इन्होंने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब आप लोगों को याद होगा, मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब आपको समझाया था, वहां पर जाके लिखवाता भी हूं अभी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है materials allowed by the management for actual production, या फिर और material which should be used for actual production, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बताई है। मैं वापस जाता हूं क्वेश्चन पर, आपको लेके आता हूं। देखिए जो भी लिखवा रहा हूं वो आप पॉज करके लिखते रहिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको लिखने का टाइम दे पाऊं आपको। देखिएगा जरा चेक करिए, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेटा था, स्टैंडर्ड डेटा में कितने किलोग्राम रॉ मटेरियल आपने डाला था,
100 किलोग्राम, ओके। आउटपुट कितना आया था? 90 किलोग्राम। 100 किलोग्राम मटेरियल डालने पर 90 किलोग्राम आउटपुट बनता है, ठीक है। अब जरा बताइए एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 9000 किलोग्राम। मुझे बताइए अगर 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल से 90 किलोग्राम आउटपुट बनता है तो 9000 किलोग्राम आउटपुट के लिए 9000 किलोग्राम आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए बताइएगा। क्या मैं कह सकता हूं 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए? 90 किलोग्राम के लिए 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल, तो 9000 के लिए कितना चाहिए? इसे अभी जब मैं लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल फॉर 90 किलोग्राम्स फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स क्या है? X। अब आप बताइए आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन है 9000 किलोग्राम X यानी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। बताइए कितना रॉ मटेरियल मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, मुझे मिलना चाहिए, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कितना मटेरियल मिलना चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ 9000 किलोग्राम फिनिश्ड गुड्स इक्वल्स टू, बहुत सिंपल, 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए 90 किलोग्राम X के लिए, तो 9000 किलोग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल। मुझे बताइए मैनेजमेंट के हिसाब से आपको कितना रॉ मटेरियल मिलना चाहिए? 10,000 किलोग्राम। अब जरा हम चेक करते हैं हमने कितने किलोग्राम में बनाया है। ये रहा एग्जाम्पल, 90 किलोग्राम 100 किलोग्राम का रॉ मटेरियल डाला, 10% लॉस हुआ, 90 किलोग्राम आपका आउटपुट आ गया। 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल में 90 किलोग्राम फिनिश गुड्स बनता है, तो 9000 किलोग्राम बनना चाहिए 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल में। हमने कितना रॉ मटेरियल डाला है बताइए? हमने 10,500 किलोग्राम रॉ मटेरियल डाला है। क्या हमने काम अच्छा किया या बुरा? बहुत सिंपल, आपने तो बड़ा बुरा काम किया है। बेसिकली 10% लॉस होता है तो आपका आउटपुट आना चाहिए था, लॉस बताइए 10% कितना हो गया? 1050 किलोग्राम। 10,500 में 10% लॉस होता है तो आपका आउटपुट 9450 किलोग्राम होना चाहिए। आपने तो सिर्फ 9000 किलोग्राम बनाया है। आपका काम बहुत बुरा है। ओके, आपका लॉस ज़्यादा है या आपका काम बुरा है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल के एंड होने तक आधा 50 to 90% समझ में आ जाएगा, दूसरे एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने 9000 किलोग्राम X बनाया है तो 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल मिलेगा आपको। और मैनेजमेंट बताइए आपको रॉ मटेरियल कैसे देगा? A, B, C 4:3:3 में ही तो देगा वो, यानी वो 4000 किलोग्राम A देगा, 3000 किलोग्राम B देगा, 3000 किलोग्राम C देगा। ठीक है, इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, देखिए 90 किलोग्राम X के लिए 40 किलोग्राम A चाहिए। 90 किलोग्राम X के लिए 40 किलोग्राम A चाहिए, तो 9000 किलोग्राम X के लिए कितना A चाहिए बताइए? 4000। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं 9000 किलोग्राम X के लिए 4000 किलोग्राम A, 3000 किलोग्राम B और 3000 किलोग्राम C, टोटल 10,000 किलोग्राम चाहिए, क्योंकि 90 किलोग्राम के लिए 100 किलोग्राम चाहिए।
ओके, देखिए टाइम लगेगा समझने में, टाइम लगेगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो यानी मुझे 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए, 4,000 3,000 3,000 से आ जाते हैं, 4,000 किलोग्राम 5 रुपये, 3,000 किलोग्राम 3 रुपये, 3,000 किलोग्राम 4 रुपये। बताइए कितना खर्चा आना चाहिए था? 4,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 3 और 3,000 इंटू 4, खर्चा आना चाहिए था 41,000। गलत करा है मैंने कुछ, एक सेकंड। 4,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 3 और 3,000 इंटू 4, खर्चा 41,000 होना चाहिए। तो दूसरे वाले में गड़बड़ है, इसका अंदर 4,200 इंटू 5, 3,150 इंटू 3 एंड 3,150 इंटू 4। ओके, इसमें गड़बड़ है, 4,3050 होना चाहिए ये, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस होना चाहिए। नुकसान कराया आपने 2,100 एडवर्ड्स, 2,100 एडवर्ड्स आया आपका ये, ठीक है। अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 41,000 लगने चाहिए थे, लगे हैं आपके 43,050, तो आपके 2,050 रुपये फालतू लगे हैं। ये है मटेरियल यील्ड वेरिएंस कि आपका आउटपुट कम आया है। ओके, यहां तक का, अभी सिर्फ यहां तक का आपको देखना है। 2,050 का नुकसान, 2,100 का नुकसान, 8,400 का नुकसान, टोटल 12,550 का नुकसान, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या करना है। अब जितना मैंने लिखवाया अभी तक उसे पीछे जाके देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। दिमाग अब बोझिल हो गया होगा, दिमाग में बोझिलता आ गई होगी। अब इतना देखिए, 10-15 मिनट का रिफ्रेशमेंट लीजिए, मुझे इतने आप पॉज कर दीजिए या पीछे का एक बार पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ तक का पढ़ लीजिए, फिर इस पूरे को कंपाइल करूंगा। वो कंपाइलेशन ही आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर करेगा। तो यहाँ तक का एक बार पढ़ लीजिए, अभी इसका बहुत तगड़ा एनालिसिस होने वाला है, तो आप इतना पढ़ लीजिए। फिर इसके एकदम बाद 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे, मटेरियल वेरिएंस खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से करिए, और ये एग्जाम की प्रेजेंटेशन नहीं है, इसको पॉज करके एक बार पीछे जाकर देखाइए, यहाँ तक का देखेगा। पूरा का पूरा आपने एक बार रिव्यू अगर देखा हो तो मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ, पूरी कहानी सुना रहा हूँ आपको, आराम से सुनिएगा। कहानी सुनिए, बस कहानी सुनने वाली बात है ये, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कुछ थोड़ी है। देखिए, आप इस तरीके से सोचिए कि मेरे को एक फिनिश्ड गुड्स बनाना है, उस फिनिश्ड गुड्स का खुद आपको एक डेटा दिया जाएगा, उस डेटा के बेसिस पर आपको आगे एक्चुअल डेटा दिया जाएगा, यानी एक डेटा स्टैंडर्ड एक एक्चुअल। अब आपको देखना है कि मैनेजमेंट ने आपको बताया होगा कि किस रेशो में मटेरियल लगाना है, कितने रुपए में उसको खरीदा जाएगा, ठीक है, कितना लॉस होगा, कितना आउटपुट आएगा। अब आपको एक्चुअल का कंपैरिजन करना है उन बेसिस पर। ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, और बड़े आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि 3 रीजन हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं अलग अलग। क्या क्या कारण हो सकते हैं देखते हैं डिफरेंस के। हाँ जी, देखिएगा आपके पास क्या क्या रीजन हो सकता है कॉस्ट डिफरेंस का। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये परचेज प्राइस अलग अलग हो सकता है। परचेज प्राइस 5 3 4 की जगह मेरे पास 635 हुआ, पहला रीजन। अब जरा जाकर देखिए मैंने क्या किया अपने सॉल्यूशन के अंदर। मैंने अपने सॉल्यूशन के अंदर जाकर कहा कि आपने जो क्वांटिटी 6 रुपये 3 रुपये 5 रुपये में ली है, वही क्वांटिटी आप 5 रुपये 3 रुपये 2 रुपये में ले सकते थे। और आप जरा ध्यान से देखिए, टोटल करके देखिए जरा क्वांटिटी का कितना आ रहा है। क्वांटिटी का टोटल करके देखिए, क्वांटिटी का जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 10,500 किलोग्राम, 10,500 किलोग्राम। तो क्वांटिटी तो 10,500 किलोग्राम है दोनों ही जगह पर। अच्छा, जरा रेशो देखिए, क्या सिमिलर है? 5250 5250, यस। 2121, यस। 3150 3150, यस। ये भी सेम है, सब कुछ सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, रेशो भी सेम है। डिफरेंस किस चीज का है?
डिफरेंस है सिर्फ प्राइस का, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है प्राइस का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं लिया। देखिए क्या किया जाएगा, एक टाइम में एक ही वेरिएंस को निकाला जाएगा, एक टाइम में एक ही गलती को ढूंढा जाएगा। सबसे पहले मैंने ढूंढा कि आखिर प्राइस की वजह से मैंने कितनी मिस्टेक की है। अब उस मिस्टेक के बाद मैं फर्दर आगे जा रहा हूं, आगे जाकर देखते हैं अब मैं फर्दर क्या करने वाला हूं। इसके बाद में जरा टोटल करके देखिएगा क्वांटिटी कितनी आ रही है। अब कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 की बात चल रही है। चेक करके देखिएगा कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 में दोनों जगह पर क्वांटिटी का टोटल करिए 10,500 10,500 है। प्राइस देखिएगा जरा दोनों कॉलम में, दोनों कॉलम्स में प्राइस सेम है। डिफरेंस है तो किस चीज का, डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ रेशो का। और रेशो क्या क्या है मैं आपको रेशो निकालना भी सिखाता हूं। यहां पर वापस आते हैं। रेशो स्टैंडर्ड है 4:3:3। जरा एक्चुअल का रेशो निकाल कर देखना। रेशो कैसे निकालोगे बताता हूं आपको। 5250 डिवाइडेड बाई 10,500 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना है जरा निकालना। 50% आना चाहिए, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर रेशो है 5:2:3 या 50%, 20% एंड 30%। चेक करके देखिए 10,500 का 50%, 20% और 30% ही आएगा, ठीक है। जबकि मैनेजमेंट का रेशो कितना है 4:3:2 या 40%, 30%, 30%, ठीक है। अब आते हैं जरा वापस। लास्ट के दो कॉलम में किस चीज का डिफरेंस निकला था, लास्ट के दो कॉलम में डिफरेंस निकला था सिर्फ और सिर्फ प्राइस का, सिर्फ प्राइस डिफर था। इसके बाद वाले दोनों कॉलम्स में यहां सिर्फ प्राइस डिफर था और कोई डिफरेंस नहीं था। रेशो की अगर मैं बात करूं तो चेक करके देखिएगा रेशो दोनों जगह पर 5%, 2%, 3% है। क्वांटिटी 10,500 ही है, ओके। 5 2 3 यहां पर कितना है 5 2 3। क्वांटिटी 10,500, 5:2:3 में क्वांटिटी 10,500, 5:2:3 में क्वांटिटी भी उतनी ही है, सिर्फ डिफरेंस है प्राइस का।